Hi everyone, welcome to my channel. So in this video I'm going to discuss this educational code forces round 131 problem solutions, and this is me Anmol. I am member technical and Disha, and if you are new to this channel then subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notified every time whenever I post this new video. So yeah, let's get started with problem A. Problem A is grass field. So in this problem, like, you are given a field of size 2 cross 2. Each cell of the field is either containing a grass or it's empty. Grass is denoted by 1 and empty is denoted by 0. So now you have to tell, like, in one operation what you could do, like you could remove all of the grass in one row and a one column. So what it meant to say, so like, let's say your grass is something, your field is something like this is your field. So in one operation what you could do, you could choose one row and, like, let's say you choose this element out, so you will delete this whole row and this whole column. By deletion I mean to say, like, you will remove all the grass from here. So like there is one column with grass, so you'll remove it in one operation. Similarly, now in second operation you'll choose this element and you'll clean out the field. So by using this, you are able to clear the field in two operations. But the optimal way of doing would have been, like, let's say this was your field. So what you could have chosen, instead of choosing this in the start, you should have chosen this. So what it would do, like, it would remove this row and this column. So here, like, your whole field would turn out to be empty and you will be requiring only one operation. So this is your optimal result. So now you have to tell in this problem, like, you are given a field of 2 cross 2 size, and now you have to tell what is the optimal answer for every field. And so let's look at the test examples. Okay, so for 0 0 0 0 you won't be doing any operation because it's already empty. For 1 0 0 1, see, so here what is happening is, so what you will do, what you would optimally do, like, you will choose this. So now it would be empty, now you will be left with this. So two operations would be required. No, not two, one is required. Let's see how. Okay, so here the optimal would have been, like, you would have chosen, if you would have chosen this column, this one, so your number of operations would have been one. So, and similarly for 1 1 1 1, you will be left with two operations. You choose this and then you'll remove this out. So basically what was there to be noted in this problem was, like, let's say you are given this a1 a2 a3 and a4. So let's assume all are equal to 0, then your answer would be 0. In what cases your answer could be 1? So I'll prove it, like, the answer would be 1 in all the cases for where your count of ones is less than or equal to 3. So see this example too. So here what would be the optimal answer? It would be 1. So similarly for this also, the optimal answer would have been 1. Similarly for, like, you could draw the multiple out cases and you could see, like, for if the number of ones are less than or equal to 3, then your optimal answer would have been 1. But in case if it's greater than 3, what I meant to say is something like this. So here your number of operations which would be required to clear out the field would have been 2. So this was the basic catch. Just count the number of ones and you will be sorted. Like, if it's less than, less than equal to 3, then 1. If it's greater than 3, then 2. And in case the count is 0, then it's 0. So that was for it in this problem. Now let's move towards the problem B. So problem B is permutation. So, like, I did one wrong summation and I'll show you how I did that. So basically what is given in this problem is, like, for I less than 1 to, sorry, I is greater than equal to 1 to n, let's say it's something like this: d of pi is equal to pi plus 1. So so this is what is this, like, you are given this d value
you are not given this d value. Let's say if for a particular permutation I is the permutation ith index, the let's say your 1 2 3 4 5 is there. So if I is 3, then your pi would have been 3. Similarly, if I is 4, then pi would have been 5. So if for a case like d into pi is equal to pi plus 1, so your cost would increase by 1. Similarly, if it's happening for multiple i's, your cost will increase simultaneously. So for the maximum cost, you have to tell the d and the permutation what you will choose to to have this maximum cost. So basically, what was to be noticed in this problem was like you are given this. Okay, so what you are going to do, so firstly like you this is your n, this is your n. तो अगर तुम ये देखो कि तुम्हारा n2 है और यहाँ पर n3 है, so like you will choose 2 numbers here and you will choose 3 numbers here. तो अब तुम देख सकते हो like if you place 1 2, क्योंकि यहाँ पर तो दो ही पोजीशन ही दो ही ऑप्शंस पॉसिबल हैं, तो 1 2 प्लेस कर लो. 2 1 तुम प्लेस करोगे तो तुम्हारा जो ये d इंटू पी आई ये होगा नहीं, तो ये वाली कॉस्ट तुम्हारी यहाँ पर 0 आ जाएगी. बट यहाँ पर ये 1 आ रही है क्योंकि 1 इंटू 2 हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पर 3 है जैसे, तो 1 2 3 प्लेस करोगे तुम. अगर तुम 1 3 2 भी प्लेस करोगे तब भी तुम्हारी कॉस्ट 1 रहेगी, तब भी तुम्हारी कॉस्ट 1 रहेगी. ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. लेट्स से यू विल चूज 4. तो 4 के लिए थोड़ा सा सीन बदलने लगेगा. लाइक 1 2 4 3 होगा अगर, तो यहाँ पर कॉस्ट तुम्हारी आ जाएगी 2. सिमिलरली अगर तुम्हारा ये 6 होता है तो 1 2 4 3 6 एंड देन 5, तो यहाँ पर तुम्हारी कॉस्ट आ जाती 3. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम 2 के मल्टीपल्स में अरेंज कर दो, लाइक 1 2 4 तुमने अरेंज कर दिया, देन 3 2 अरेंज कर दिया, तो उस केस में तुम्हारा मैक्सिमम ही आंसर आएगा, मैक्सिमम कॉस्ट आएगी और डी तुम्हारा 2 हो जाएगा. अब अगर तुम्हारे पास जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, जैसे ये 3 था और तुमने यहाँ पर 2 1 3 प्रिंट करा दिया, तो अगर तुम यहाँ पर 2 1 3 प्रिंट करा रहे हो और अगर तुम जैसे 1 3 अरेंज कर रहे हो और एक तुम्हारे पास ऑप्शन होता है 1 2 3 का, तो यहाँ पर तुम्हारा डी की वैल्यू आती है 2, यहाँ पर तुम्हारी डी की वैल्यू आती 3 और कॉस्ट यहाँ पर आता तुम्हारा 1, यहाँ पर भी 1, तो तुम इसको प्रेफर करते. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर तुम्हारी वैल्यू लेस देन 3 है, एन की वैल्यू तुम्हारी लेस देन इक्वल टू 3 है, तो तुम्हें क्या करना है उस केस में, तुम्हें बस फर्स्ट वाले एलिमेंट को ऐसे अरेंज करना है एन वाले को, और बाकी एक भी एलिमेंट जो भी बचेगा, हो सकता है ना बचे, हो सकता है बचे, वो यहाँ आ जाए. बट इन केस अगर तुम्हारी एन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाती है, अगर वो केस हो जाता है तो तुम्हें वैसे अरेंज करना पड़ेगा 2 के मल्टीपल्स में और डी तुम्हारा टी होगा 2 होगा. तो अगर जैसे तुम्हारी एन की वैल्यू 4 हो जाती है, ये केसेस ही बनाकर देखना पड़ता है तुम्हें, इसका कोई तरीका नहीं है या इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, आई थिंक सो. और अगर तुम्हें मिलता है तो पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, वुड बी हेल्पफुल फॉर मी टू. सो अब अगर जैसे तुम्हारा n5 होता है तो उस केस में भी ये दो ही कॉस्ट चल रही होती, तुम और मैक्सिमम कर ही नहीं सकते इस कॉस्ट को डी को 2 के अलावा लेने, डी को 2 के अगर अगर तुम डी को 3 ले लो या 4 ले लेते इसमें, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम कॉस्ट नहीं आ रही होती. अगर तुम जैसे 6 के लिए भी देखो, अगर n इज इक्वल टू 6 के लिए, तो 1 2 4 आ जाता, फिर 3 6 आता, फिर 5 आता, तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारी कॉस्ट हो रही है 3. बट अगर तुम इसे 3 के लिए लेते खाली, कि तुम्हारा 3 इंटू 3 तुम्हें बनाना होता, मतलब d इंटू पी आई, डी तुम्हारा 3 होता, तो उस केस में तुम्हारा कौन सा एलिमेंट बनता, 1 2 6 बन जाता, और कुछ बनता नहीं बनता, तो उस केस में तुम्हारी कॉस्ट आ जाती 1. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि d इज इक्वल टू 2 वुड बी दी ऑप्टिमल आंसर फॉर n ग्रेटर देन 3. ये चीज़ तुम्हें देखनी थी इस प्रॉब्लम में. तो मैंने ये चीज़ तो नोटिस कर ली थी, बट मैंने क्या गड़बड़ करी थी, मैंने सिर्फ 1 वालों को ही अरेंज कर दिया था ऐसे. मैंने सिर्फ 1 जैसे n की वैल्यू अगर 8 है तो मैंने 1 2 4 8 उसके बाद ऐसे ही रैंडमली अरेंज कर दिया, जबकि मैंने ये नहीं देखा कि 3 6 भी पॉसिबल है. तो इस वजह से मेरा पहला रॉन्ग समेशन आ गया था. सो नाउ लेट अस लुक एट द कोड. तो मैंने जैसा कि बताया, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 3 देन यू विल बी सी आउट n करोगे तुम, n मतलब d, और 1 n प्रिंट कर दोगे, उसके बाद जो भी बचे हुए नंबर है वो प्रिंट कर दोगे.
बट अगर तुम्हारा n ग्रेटर देन 3 होता है तो तुम 2 प्रिंट करोगे। एक मैंने मैप ले लिया है ताकि ये स्टोर करने के लिए कि 1 2 4 8 हो चुके हैं, तो मैं 2 से दोबारा स्टार्ट ना करूँ, 4 से स्टार्ट ना करूँ, 8 से स्टार्ट ना करूँ, जबकि 3 से कर सकता हूँ यहाँ पर स्टार्ट। तो एक विजिटेड मेंटेन करने के लिए मैंने ये मैप ले लिया है। सो int x इज इक्वल टू आई, इफ माई ऑफ x, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यू करना है, नहीं करता तो फिर मैं वाइल x इज लेस देन इक्वल टू n करते हुए x इंटू 2 करता चला जाऊँगा, क्योंकि d मेरा यहाँ पर 2 ही है। तो ये तुम देख सकते हो, बहुत ही सिंपल था। तो उसके बाद मैंने माई को भी मेरे जो मैप के अंदर है उस वैल्यू को भी डाल दिया मैप के अंदर, और एंड में मैंने उसको सी आउट हैंडल कर दिया वो प्रिंटिंग वगैरह के। सो यही था। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, जैसे अगर तुम्हारा n 10 होता तो हमारा कोड क्या करता, पहले वो 1 से शुरू होता है, 1 2 4 8, उसके बाद वो 3 पर जाता है, क्योंकि 1 पे 1 हो गया था। अब वो 2 पर मूव करता तो क्या दिखता उसे कि 2 विजिटेड है, तब वो 3 पर जाता। ठीक है, तो अब वो 3 से फिर लूप चलाता, 3 6, अब 3 6 आ गया। अब 3 6 उसके बाद होता है तुम्हारा 12, तो 12 तो लूप से बाहर ही चले जाता है, n से बड़ा हो जाता है, तो अब तुम्हारा 4 पर आएगा। ठीक है, 4 के लिए वो देखेगा कि पहले से ही प्रेजेंट है, तो 4 के लिए नहीं चलाएगा, वो 5 के लिए चलाएगा। तो 5 के लिए तुम्हारा चलेगा 10 आ जाएगा, उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा नंबर, तो 5 10 भी सॉर्टेड हो गया। अब तुम आगे बढ़ोगे, तुम 6 पे बढ़ोगे, तो 6 तुम्हारा प्रेजेंट है, तो आगे बढ़ जाओगे। 7 के लिए 7 को तुम ऐसी रैंडमली इंसर्ट कर दोगे, 7 कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। देख सकते हो 7 इंटू 2 वुड हैव बीन 14 एंड 14 इज ग्रेटर देन n। अब 8 के लिए फिर से यहाँ पर प्रेजेंट है, 9 को तुम रैंडमली इंसर्ट कर दो। तो ऐसे हमारा कोड कुछ चल रहा होगा। एंड इफ इन केस यू हैव एनी क्वेरी देन यू कुड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप और यू कुड पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। Okay, so now let's move towards the problem C. Okay, I was checking like कि recording हो रही है नहीं हो रही, and man this question like it costed me 3 wrong answers, and I'll tell you why. Like I haven't included this hash divine int long over here, so it costed me 3 wrong submissions. So now let's look. It was a tricky binary search question. So now let's understand. So you are given with n workers which are performing m task. The workers are numbered from 1 to n, and each task I has a value ai. AI is the index of the worker who is proficient in the task. And if a particular worker is proficient in a particular task, then he or she would take 1 hour to complete that task. Otherwise, it would require them to take 2 hours to complete that task. So, and they could work in parallel or independently each other. And each worker can only work on one task at once. So you'll have to assign the worker all the tasks in such a way that all the tasks are completed as early as possible. The work starts at time 0. So you have to tell what is the minimum time all the tasks would take to complete by. Okay, so सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम को। लाइक तुम्हें एक n दे रखा है, n इज दी सॉरी, सो फर्स्टली तो तुम्हें टेस्ट केसेस ही दे रखे हैं, फिर तुम्हें एक वर्कर्स का काउंट दे रखा है, वर्कर्स दे रखे हैं, वर्कर्स लेट से 2 है, एक तुम्हें n दे रखा है। n क्या बता रहा है कि तुम्हारे टास्क बता रहा है, और टास्क में ये बता रहा है कि प्रोफिशिएंट कौन सा है। जैसे तुम्हारा यहाँ पर ये फर्स्ट वाले टास्क के लिए फर्स्ट पर्सन प्रोफिशिएंट है, सेकंड वाले टास्क के लिए सेकंड पर्सन प्रोफिशिएंट है। तो 1 2 1 2 अगर जैसे है, तो ये फर्स्ट वाले को अगर तुम ये टास्क दोगे फर्स्ट वाले वर्कर को, तो वो 1 घंटे में निपटा देगा। सिमिलरली अगर तुम उसको फर्स्ट वाले वर्कर को ये वाला टास्क दोगे तो वो 2 घंटे लगा देगा इस टास्क में। ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो तुम्हें ये बताना है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो बेसिक कैच तो इस प्रॉब्लम में यही था कि तुम्हें क्या करना है। मैंने ये चीज़ देख ली थी, इसमें मेरे को चमक गया था कि मैं अगर इसको ऐसे बना लूँ, फर्स्टली तो मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया था। लेट्स से मेरे कुछ एम वर्कर्स हैं, जो भी एम वर्कर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो भी काउंट है, लेट्स से यहाँ पर 5 है और 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 1 है। तो अगर मेरा एक भी वर्कर खाली ही पड़ा है, अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूँ इफ़ माई एनी ऑफ द वर्कर इज़ आइडल, तो उस केस में मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा ऑप्टिमल आंसर। मेरे को बस ये कोशिश करनी है कि मेरा हर वर्कर जो वो भरा मतलब वो काम करता रहे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो 2 की प्रोफिशिएंसी से करे या 1 की प्रोफिशिएंसी करे, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हर वर्कर काम करता रहे। उस केस में मेरा ऑप्टिमल आंसर आएगा। और ये तुम कुछ टेस्ट केसेस बना के देख सकते हो तो तुम समझ जाओगे। अगर तुमने ये चीज़ नोटिस कर ली तो उसके बाद तो तुम्हारे पास एक नॉर्मल तरीका ये होता है कि तुम हर वर्कर को आइडल ना बनाने के लिए तो ये n इंटू एम में हो जाता।
ये चीज़ कि तुम पूरे पे आइटरेट करते, जो भी वर्कर खाली होता और जो भरे हुए होते उनमें से कुछ कुछ डालते रहते, और ये तुम n टाइम्स करते। n में क्या कह रहा हूँ, जो भी तुम्हारा मैक्सिमम नंबर किसी भी वर्कर के पास है, तो ऑर्डर ऑफ nm होता है, बट n और m दोनों 2 × 10⁵ है, सो इट वुड हैव बीन 4 × 10⁻10। सो हमें कुछ अच्छा सोचना था इसमें। सो देन आई थॉट ऑफ बाइनरी सर्च। अगर मैं किसी तरह ये पता कर लूँ कि एक तो मेरा मिनिमम टाइम और मैंने मैक्सिमम टाइम ले लिया, तो ये चीज़ तो ठीक है। उसके बाद तुम ये देख लो कि एक पर्टिकुलर तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम उस टाइम में ये सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हो? तो अगर जैसे ये फर्स्ट वाला वर्कर है, इसके पास जैसे ये 5 टास्क हैं करने के लिए, और तुम्हारी टाइम की वैल्यू लेट्स सपोज इट्स 4, तो ये एक टास्क तो नहीं कर पाएगा, इसे एक टास्क कहीं और देना पड़ेगा। तो मैं एक टास्क मेरे को क्या कर दूंगा, एक्स्ट्रा कर दूंगा कि मेरे को एक टास्क करवाना है। अब यहाँ पर 2 टास्क हैं इसके पास, तो मतलब ये 2 टास्क कर सकता है, पर ये 2 टास्क एक एक प्रोफिशिएंसी वाले कर सकता था। 2 प्रोफिशिएंसी वाला तो एक ही टास्क कर सकता है, तो मैं फ्री में एक बढ़ा दूंगा। सिमिलरली ये मैं वो वाला फंक्शन बता रहा हूँ जिससे मैं चेक करूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में क्या मेरा आंसर अचीवेबल है, क्या ये टाइम 4 में मैं सारे टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो मैं वो चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो वाला फंक्शन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि बाइनरी सर्च n log n में काम करता है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ n वाला फंक्शन है, मैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 3 के लिए तुम देखते हैं, यहाँ 3 पड़े हैं, 3 उसके पास पहले से हैं, तो एक टास्क को एक प्रोफिशिएंसी वाला तो ले सकता था, बट अब क्योंकि वो और कोई टास्क लेगा किसी और से, तो वो 2 प्रोफिशिएंसी वाला लेगा, तो इसलिए वो 1/2 करेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ वो कोई टास्क नहीं ले सकता, तो फ्री तुम्हारा एक ही रहेगा। यहाँ अब 3 पड़ा है, जो कि तुम्हारे उससे टाइम से कम है, तो तुम्हें कोई इशू है नहीं। तो इसका मतलब वो 4 में कर लेगा, इसको 4 में कंप्लीट कर लेगा। तो अब अगर वो 4 में कंप्लीट कर लेगा, तो मैं इधर वाले पार्ट में अपना आंसर देखूंगा, इस वाले मिड को निकालूंगा, वरना अगर 4 में नहीं कर पाता तो मैं इधर वाले में निकालता, जैसा कि तुम्हें पता ही है बाइनरी सर्च के बारे में। तो अब अगर तुम टाइम 3 पर देखो, जैसे तो अगर तुम टाइम 3 पर देखते तो यहाँ 2 खाली पड़े हैं, 2 उसके इनकम्प्लीट रह जाते, ये 2 टास्क तुम्हें कहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पर ये 2 पड़े हैं पहले से, तो यहाँ पर एक, अगर तुम 2 प्रोफिशिएंसी वाले को डालोगे तो वो तुम्हारा टाइम 3 को एक्सीड कर देगा, क्योंकि 2 + 2 4 हो जाता, तो इसका मतलब यहाँ कोई नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये 3 पहले से ही है, यहाँ पर भी 3 पहले से, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम 3 में तो तुम वो काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे 2 टास्क एम्प्टी रह जाएंगे, जो 2 टास्क तुम्हारे हो ही नहीं पाएंगे। तो यही करना था इस प्रॉब्लम में। नाउ आई विल शो यू द कोड, और कोड भी बहुत आसान सा है, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो फर्स्टली तो यही था कि मैंने मैप बना लिया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया क्या क्या काउंट है। मैप उसी चीज़ का कि ये टास्क के लिए ये पर्सन प्रोफिशिएंट है, तो उसका काउंट स्टोर कर लिया। मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा तुम्हें, कि मैक्सिमम कितनी प्रोफिशिएंट, अगर तुम्हारे जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 में तो कर ही लोगे, क्योंकि बाकी सारे कम है उससे, तो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम तुम्हारा मैंने मान लिया कि जो इन सब में मिनिमम होगा वही वैल्यू होगी। तुम 0 और 2 × 10⁵ कुछ भी ले सकते हो, वो भी चल जाती। अब तुम मिनिमम टाइम इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम किया, वही नॉर्मल बाइनरी सर्च, फिर मिड निकाला, उसके बाद मैंने चेक किया कि मिड माई वर्कर्स मैंने ये फंक्शन में पास कर दिया। बस ये बाइनरी सर्च में तुम्हारे फंक्शन ठीक होना चाहिए, बाकी तो तुम्हारा हो ही जाता है, अगर तुम ये सब सही से इंक्लूड कर लो तो। तो उसके बाद तो मैंने क्या चेक किया कि इफ़ माई आई इज़ ग्रेटर देन माई वैल्यू इज़ वॉट, कि मैं उस टाइम के लिए चेक कर रहा हूँ क्या उस टाइम के लिए पॉसिबल है। अगर वो मेरी उस चीज़ से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, वो ये वाला केस है, मेरे पास एक्स्ट्रा टास्क है यहाँ पे, तो ये 2 टास्क मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो ये मैं एक्स्ट्रा में ऐड कर दूंगा, वो एक्स्ट्रा में ऐड कर दूंगा। इफ़ इन केस, अब जैसे अगर तुम्हारे जैसे यहाँ पे टाइम 4 होता, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 बच रहे थे, एक टास्क तुम ले सकते थे यहाँ, क्योंकि 2 प्रोफिशिएंसी वाला एक ही टास्क ले पाते, एक प्रोफिशिएंसी वाले 2 ले लेते, बट एक प्रोफिशिएंसी खुद के साथ ही होती है, तो 2 ले पाते, तो तुम एक ही ले पाते 2 प्रोफिशिएंसी वाला, तो अगर तुम एक ले पाते तो फ्री तुम्हारा 1 से बढ़ जाता है। तो वही मैंने किया, वैल्यू माइनस माई ऑफ i/2, और एंड में चेक कर लिया, फ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स्ट्रा, देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई रिटर्न फॉल्स। And this was in this problem basically. If you want, I could run this test case also for you. It would give you better clarity. Okay,
Okay, so let's take this example 513 to 4, not 513 to 4. Let's take a better example. I'll think example on my own because I don't think so like they would be able to construct such. Okay, so one let us assume 2 कुछ ऐसा है, 3 कुछ ऐसा है, 4 कुछ तुम्हारा ऐसा है और 5 तुम्हारा ऐसा है। तो इससे मत घबराने क्या क्या लिख दिए हैं। इसका मतलब ये है कि 3 है, इसका मतलब ये है कि 2 है, इसका मतलब ये 3 है, इसका मतलब ये है कि 5 है। ये चीज़ है बस। ठीक है, लिखने का तरीका है, इससे थोड़ी मतलब मज़ा आता है देखने में। ठीक है, तो अब तुम्हारा मिनिमम मिनिमम तुम्हारा क्या होगा। मिनिमम अगर तुमने गेस कर लिया तो मिनिमम तुम्हारा 2 होगा और मैक्सिमम तुम्हारा कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब तुम मिड निकालोगे। सो मिड वुड कम आउट टू बी 7/2, इट वुड हैव बीन 3। तब तुम चेक करोगे कि 3 में क्या मेरा आंसर पॉसिबल है, क्या 3 टाइम में मैं सारे टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। तो देखो, पहले तो तुम्हारे पास 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं यहाँ पर तुम्हारे पास एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पर तुम एक एक प्रोफिशिएंसी वाला डाल सकते थे, बट अब तो वो तो ऑप्शन नहीं है, 2 प्रोफिशिएंसी वाला ही डालना पड़ना है। तो उसके लिए तो वो 3 को एक्सीड कर जाता ना। तो यहाँ भी कुछ नहीं डलेगा, एक्स्ट्रा तुम्हारे पास 2 है, यहाँ पर भी नहीं डल पाएगा और यहाँ पर भी नहीं डल पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास 2 एक्स्ट्रा थे और फ्री तुम्हारे पास 0 था। तो इस केस में ये मिड पॉसिबल नहीं है। तो इसमें अगर इस वाले मिड के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा तो इससे कम टाइम में तो कैसे ही पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं मिड को आगे बढ़ा दूंगा। तो मैं मिड को 4 मिड प्लस 1 मतलब मिनिमम को 4 सेट कर दूंगा और मैक्सिमम को 5 सेट तो है ही मेरा पहले से। अब नाउ आई विल चेक फॉर मिड। मिड वुड कम आउट टू बी 4। अब 4 के लिए तुम चेक करोगे तो 4 के लिए ये चारों खत्म हो जाएंगे और ये वाला बच जाएगा, एक टास्क बच जाएगा। ऐसी ये वाले तीनों खत्म हो जाएंगे, बट एक प्रोफिशिएंसी वाला आ सकता है, 2 वाला तो कोई नहीं आ पाएगा यहाँ, क्योंकि वो 5 हो जाएगा और वो एक्सीड कर जाएगा 4 को। ऐसी यहाँ पर एक आ जाएगा 2 प्रोफिशिएंसी वाला जो 4 में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो एक में ही हाँ डाल दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4 मेरा आंसर अचीवेबल है। अचीवेबल आ गया, तो अब मैं मैक्सिमम को मिड -1 सेट कर दूंगा, वो 3 सेट हो जाएगा। तो मिनिमम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम हो जाएगा, तो आंसर तुम्हारा 4 रिटर्न हो जाएगा। I hope I was able to deliver the solution to you. And if in case you feel any query, then you could post that in the comment section, or you could join my Telegram group. And there are lots of video related to data structures on my YouTube channel also. So do subscribe and hit the like button if you like the video. See you in the next video. Thank you. Bye.